Okay, good morning, student. Everybody, good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay, so you can see here, as per our syllabus, we have completed these units. So you can see on your screen. Yes. Okay. So first unit, Fourier series and its application, we have completed it. Okay. Then Laplace transform and its application, it is also completed. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then vector differential calculus, vector integral calculus and curve fitting was discussed by Yogeshwari ma'am. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now you can tell me, is there any problem in any चैप्टर और एनी यूनिट देन वी विल डिस्कस इट ओके फॉर एग्जांपल अभी देव ने बताया फूरियर सीरीज में प्रॉब्लम हो रहा है सो वी विल डिस्कस हियर बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड बोथ द यूनिट सो वी हैव मोर लेक्चर्स सो वी कैन रिवाइज इट है ना हम उसको रिवाइज कर सकते हो तो अभी जैसे देव ने मुझे एक स्टेटमेंट भेजा है अभी यू कैन सी ऑल्सो एवरीबडी है ना इन योर चैट बॉक्स में देव ने भेजा है देखो यस यस देव इसमें कौन से एग्जांपल में प्रॉब्लम हो रहा है देव तो फर्स्ट वन में डिडक्टिव फॉर्म में फर्स्ट वन ओके फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यस देखते हैं चलो ओके आई टेक अ पिक्चर ऑफ दिस वन यस ओके नाउ one minute okay I open a green board for you then we can start yes green board yes okay is it visible everybody यस सर okay so first example of your assignment is this one चलो देखो यहाँ पे find yes example find the Fourier series of f of x is equal to f of x is equal to pi minus x by 2 whole square in the interval 0 to 2 pi. Prove that. What do we want to prove here? Prove that 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on is equal to pi square by 12. Okay, I don't give you complete solution because this is your assignment. So I quickly go through it. Okay, everybody? क्योंकि आपको करने के लिए दिया है ना assignment, but I give a hint in each term. Okay, each step. Okay. Yes, sir. Okay, so here you can see your function is pi minus x by 2 whole square. Is it okay? यस Yes. सर Huh? Yes, okay. So, and interval is this one 0 to 2 pi. Okay, I want to solve or I want to find the Fourier series for this one. So, what is our first step? Find the Fourier series. Okay, step 1 कर देंगे ना आप? Write down the Fourier series. State the Fourier series. Yes or no? हो जाएगा ना? यस सर Okay, what is my L? L here? L क्या होगा? 5 Pi. Very good. So A0 is equal to हो जाएगा 1 upon pi integration 0 to 2 pi pi minus x by 2 whole square dx.
if you see here, there is a square, so you cannot directly find out the integration of this one. अगर उसको करना है तो थोड़ा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, इसलिए सो यहाँ पे 1/4 मैंने बाहर ले लिया, एंड दिस विल बी पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, देन 1/4 पाई, दिस विल बी पाई स्क्वायर एक्स minus 2 pi x square by 2 plus x cube by 3 and 0 to 2 pi. Now substitute 2 pi, so 1/4 pi, so this will be 2 pi cube minus 2 pi by 2 into 4 pi square plus 8 pi cube by 3 minus 0. Okay, so 2 will be cancelled out here, so we have 1/4 pi 2 pi cube minus 4 pi cube plus 8 by 3 pi cube. Okay, so here you have 1/4 pi 2 minus 4, that means minus 2 plus 1 by 3 pi cube, and pi will be cancelled out, so pi square by 4 into, what is the answer of this one? minus 5 by 3. Minus सर 5 by minus 2 plus 8 by 3 होगा ना सर? Sorry? minus 2 plus 8 by 3 होगा ना सर? Yes, 8 by 3. Yes, 8 by 3. Yes, thank you. 8 by 3 है everybody. Okay, so this is 8 by 3. So यहाँ पे कितना बचेगा आप बताओ. अब -5 by 3 नहीं होगा, कितना होगा? 2 by 3 plus 2 by 3 आएगा, है ना? So यहाँ पे 2 will be cancel out. So we have pi square by 6. Is it okay? Yes, sir. yes sir. Okay, now this is our a0. The next step is for an. So 1/pi integration 0 to 2 pi pi minus x by 2 whole square into cos pi cancel होके nx dx आ जाएगा. Okay, अब again 1/4 pi मैंने कर दिया 0 to 2 pi pi minus x whole square cos nx dx. Now I want to differentiate this, तो इसका सीधा differentiation possible है, so we cannot open it. Okay, so pi minus x whole square as it is, integration of cos will be sin nx upon n minus differentiation of this, so 2 pi minus x, then integration of cos nx, again what we have, sin nx का cos nx upon n square. Okay, then if you go for next step, then plus 2 and pi minus x का हो जाएगा minus sorry सर उधर minus- ऊपर में -1 आएगा ना डिफरेंशिएशन, पाई माइनस एक्स का Ah, माइनस yes, because here is there is a composition function. Okay, 2 आगे आ गया, pi minus x as it is, और pi का 0 और minus x का -1. yes, so 2 - 1 हो गया यहाँ पे, और ये so यहाँ पे पूरा ये लेना पड़ेगा आपको, है ना? so 2 pi minus x -1 हुआ, so pi minus x का कितना हो जाएगा यहाँ पे -1. ओके, और ये -1 तो ऑलरेडी था, तो वहां पे एक -1 आएगा. एक मिनट, -2 पाई माइनस एक्स हुआ, ये -1 हुआ, लेकिन इसी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है. यहाँ पे -1 लेंगे, देन दिस विल बी माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर. ओके, एंड क्यूब 0 to 2 pi. Okay, everybody, is it okay? Yes, sir. yes So sir. these both are the 0 due to the sin 2 pi and sin 0. Okay, next is 1/4 pi. Here minus plus minus minus. 2 is outside, pi minus x into cos nx upon n square, and limit is 0 to 2 pi. So this will be 1/2 pi. If you substitute 2 pi, then pi minus 2 pi, it gives you a minus pi, minus plus, so pi
cos 2n pi divided by n square minus minus plus minus minus plus 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई cos 0 upon n square. Okay, so 1 upon 2 pi will be outside. Okay, so we have cos 2n pi means 1 upon n square plus 1 upon n square. So again we have 1 upon, that means 2 pi will be cancel out and 2 will be cancel out, so 1 upon n square. Is it okay? यही मिलेगा ना? यही Yes, sir. Yes, sir. देव आपको यही मिल रहा है? यस सर यही मिल रहा है. Okay, then we go for the Bn. So Bn is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi minus x by 2 whole square into sine n pi x by pi. So we have nx only, nx, and then dx. Okay, so 1 upon 4 pi 0 to 2 pi. This will be your pi minus x whole square. This is your sine nx and dx. So 1 upon 4 pi. Now again pi minus x whole square, as it is, integration of this one is cos minus cos nx upon n, then minus 2 pi minus x into minus 1. Integration of this will be minus sine nx upon n square, and last term will be plus 2 pi minus x into minus 2 minus 1 ही आएगा सिर्फ यहाँ पे -1. Yes, and here this will be minus sign, that means minus minus plus cos nx upon n square, and limit will be 0 to 2 pi. Now if you cancel out this, okay, then 2 pi here, sin 2 pi 2n pi and sin 0 will be 0 as usual, जैसे हम करते थे ऐसे. Yes or no, student? Yes, sir. Okay, now next term is replace 2 pi. So pi minus 2 pi will be minus pi whole square. So it will be pi square. Okay, and here minus cos 2n pi divided by n minus 2. Again minus minus plus, plus minus minus. So minus here. And यहाँ पे yes 2 pi minus 2 pi minus pi. Okay, and then sorry, we cannot discuss for the second term. Yes, and here next is minus minus plus, so here plus 2 cos 2n pi divided by n square minus 0 के लिए, so 0 के लिए 0 हो गया, so we have pi square, ये हो जाएगा minus cos 0 divided by n, and then minus because of second limit, so minus minus plus, plus minus minus, so 2 cos 0 divided by n square. So you can see here, देखो यहाँ, चलो एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको. आंसर क्या आएगा बताओ, कोई बता सकता है? व्हाट इज माय आंसर? नहीं, किसी ने सॉल्व ही नहीं किया होगा ना, है ना? यस और नो? सो आंसर इज 0. यू कैन सी. फंक्शन है डायरेक्ट जीरो नहीं ले. सॉरी, यस देव, फंक्शन है तो डायरेक्ट जीरो नहीं ले सकते. ये फंक्शन ऑड है ना, हाँ तो डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं ना. लेकिन कैसे चेक किए कि वो ऑड है? एफ ऑफ एक्स इवन है और साइन ऑड है. एफ ऑफ एक्स कैसे इवन है? पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर है. ओके, सो एफ ऑफ माइनस एक्स करे देव तो क्या होगा? पाई प्लस एक्स हो जाएगा. तो ये दोनों फंक्शन चेंज नहीं है. अब देखो देव, yes or no? Both are the different functions, so we cannot check here even odd, or we cannot apply the even odd concept because your function is drastically changed, है ना? Your function is totally changed. Okay, Dev, Yes. do you understand? है ना? Everybody got it?
सर हाँ सर बोलो हाँ बोलो। जो असाइनमेंट दिए ना सर, आप क्या उसके सिर्फ सिर्फ ओनली आंसर भेज सकते हो सर? चेक करने के लिए मेथड नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट का आंसर भेज सकते हो? आंसर आंसर के लिए आपको देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको एग्जांपल्स दिए ना वो बुक में अवेलेबल ही है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है और फिर उसको सॉल्व करना है ना। अगर आंसर चाहिए तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट एग्जाम्पल है तो वो तो हमने क्लास में ही करवा दिया है। यस और नो? देखो सर वो लाप्लास ये सब तो हो जाता, पर सर लाप्लास में प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि मोर देन वन मेथड है ना, तो फिर। नहीं, आप मुझे भेज देना, फिर जैसे अभी हम कर रहे हैं ना देव का एग्जांपल यहाँ पे डिस्कशन, ऐसे हम डिस्कशन करेंगे, वी हैव द टाइम, है ना, तो आपका फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके सर। है ना दक्ष? और मैं बोलूंगा मैम को इसके आंसर उनके पास अवेलेबल है तो हम शेयर कर देंगे। डन, चलो। यस सर, थैंक यू सर। यस, अब नेक्स्ट क्या Yes. करना है मुझे, ये सब कुछ मुझे फूरियर सीरीज में रिप्लेस करना है। सो द फूरियर सीरीज या फिर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज is f of x is equal to a0 by 2. So a0, what is my a0? A0 is pi square by 6. So pi square by 6 into 1 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. What is my an? An 1 by n square. 1 by n square. Yes, so 1 by n square into cos nx plus bn will be 0. So this is my f of x. Now what is my f of x? Pi minus x by 2 whole square. Yes or no? Yes, sir. So summation n equal to 1 to infinity cos nx upon n square. So this is my equation star. Now I want to deduce here. What we want to reduce? Pi square by 12. Yes or no? Yes, sir. यस, पाई स्क्वायर बाय 12। बट देखो यहाँ पे मुझे डिड्यूस क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्लेम करके लिख रहा हूँ, हाँ, ताकि आपको पता चले कि क्या क्लेम किया। 1/1 स्क्वायर प्लस 1 नो, नॉट प्लस, ऑल्टरनेटिव है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। इज इट स्टूडेंट? Yes, sir. है ना? सो वी वांट टू Yes. प्रूव। तो देखो जब भी ये प्रूव करना है तो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बोला था, एंड व्हाट इज दैट? यू हैव टू चेक अबाउट दिस पाई वैल्यू। x इज इक्वल टू 0, देन पाई बाई 2, देन माइनस पाई बाई 2 एंड देन पाई एंड माइनस पाई। अब जब भी कॉस वाली सीरीज होगी उसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस पाई बाई 2 के लिए हमको पता है कि वो 0 हो जाता है। अगर साइन होता है तो ये दोनों उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ तीन ही वैल्यू के लिए सोचना पड़ेगा। ये पता चल गया सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. है ना? ओके, तो चलो जीरो से सोचते, यहाँ पे हम रफ वर्क भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो से सोचते, चलो जीरो से मैंने सोचा तो ये मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 0 मीन्स 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन n स्क्वायर आया, तो ये 1 प्लस माइनस नहीं मिलेगा। प्लस माइनस कब मिलेगा एवरीबॉडी? जब -1 रेज़ टू n आएगा तब। Yes, sir. Yes. ओके, यस, -1 रेज़ टू 0, तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर -1 रेज़ टू, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ तो ये क्या होगा -1 रेज़ टू 1, सो -1 आया। फिर उसके आगे जाएंगे तो +1, ऐसे करके आएगा। यस और नो? तो मुझे अगर जब भी ऐसे प्लस माइनस दिया है तो मुझे कॉस वाली टर्म को ये बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो, अगर यहाँ पे होता तो उसको 1 बना देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, इसलिए उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उसको -1 रेज़ टू n। अब -1 रेज़ टू n के लिए दोनों ही दोनों में से कोई भी वैल्यू लूँ तो क्या चेंज होगा देखते हैं। चलो यहाँ पे पाई लेके आगे बढ़ते हैं, तो मैंने पाई लिया,
तो पाई माइनस पाई स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, यस और नो? x इज इक्वल टू पाई के लिए कर रहे हैं, ये पता चला कैसे वर्क नहीं करेगा? यस सर। ओके, अब x इज इक्वल टू पाई के लिए सोच रहा हूं, तो पाई माइनस पाई मेरा 0, वी हैव द पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity cos n pi divided by n square. Now substitute the value of cos n pi. So here I have minus pi square by 12 is equal to summation n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square, because my cos n pi will be minus 1 raised to n. Okay, now think about here. देखो अब इसको ओपन करके देखो, तो इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो -1 अपॉन 1 स्क्वायर, यस और नो, प्लस फिर से यहाँ पे -1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, देन -1 क्यूब अपॉन n क्यूब, सॉरी n स्क्वायर नॉट n क्यूब, n स्क्वायर, प्लस -1 रेज़ टू 4 अपॉन n स्क्वायर, एंड ऐसे चलता रहेगा कि नहीं स्टूडेंट? यस सर। ओके, और यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 तो है ही, सो यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिला -1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा -1 स्क्वायर प्लस दैट मीन्स 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा -1 अपॉन n स्क्वायर, फिर यहाँ पे +1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, नाउ we want here only pi square by 12, there is no minus sign for the deduction, so you can multiply both side by -1. so यहाँ पे क्या मिला, pi square by 12 is equal to, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 अपॉन n स्क्वायर, इसको फिर से करूंगा तो +1 अपॉन n स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, सॉरी नॉट n स्क्वायर क्यों मैंने रखा है यार, सॉरी आप लोग बोलते भी नहीं हो, n की जगह पे तो क्या रिप्लेस करना था, 1 2 3 ऐसे करके, मैंने सोचा ये तो 0 हो जा रहा है, यस देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करना था, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, देन प्लस आएगा एंड इट्स ओके. सो नाउ वो जो हमको चाहिए था वो तो मिल गया हमको, यस और नो? यस सर। हैंड्स प्रूव. तो इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ? सर ये x की वैल्यू लेने में। हाँ x की वैल्यू, चलो अगर माइनस पाई लेते तो, माइनस पाई लेते तो क्या प्रॉब्लम होता है वो भी दिखा देता हूँ. देखो माइनस पाई लेते तो आपका माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाता पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाता है ना, 2 पाई स्क्वायर दैट मीन्स 4 पाई स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ पे एक पाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बचता, और लेफ्ट हैंड साइड पाई स्क्वायर की वजह से आपका जो पाई स्क्वायर बाय 12 चाहिए था वो नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड? यस सर। है ना, तो एक ही वैल्यू यहाँ इसमें से कोई काम दे रहा होगा, लेकिन जब भी कॉस की यहाँ पे सीरीज है तो आपका ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब भी साइन वाला है तो आपके ये नीचे वाले दो कैंसिल हो जाएंगे, साइन के लिए तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन राइट नाउ? नो सर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको फूरियर सीरीज का है ना सिंपल तरीके से दिखा देता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है. देखो फूरियर सीरीज, सो फूरियर सीरीज में फर्स्ट मेरा मेथड था जनरल मेथड. ओके, अब जनरल मेथड मीन्स क्या करना है, सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा स्टेट फूरियर सीरीज. ओके, देन नंबर 2 में आएगा फाइंड a0. ओके, देन नंबर 3 में आएगा फाइंड an, देन नंबर 4 पे फाइंड bn, एंड नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूटिंग. ओके, सब्स्टिट्यूट all these values in equation 1. ओके, चलो बाकी सब
Okay. What is your second method? Anybody? कोई बताएगा सेकंड मेथड कौन सा किया था फूरियर सीरीज में? ऑड इवन ऑड इवन किया था डायरेक्ट? बताओ चलो। ऑड इवन तो नहीं किया था बेटा, वो मुझे पता है। कोई बताएगा दूसरा कौन सा किया था? चलो वो भी मैं ही बता देता हूँ। ये जनरल मेथड था। सेकंड था वो आर्बिट्ररी पीरियड के लिए था। ओके, सो आर्बिट्ररी पीरियड में क्या चेंज होगा? सो जो हमारा एल था ना उसमें चेंज आएगा। एल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ये जो जनरल मेथड था उसमें आपका एल पाई होगा, है ना? इस तरीके से सारे एग्जांपल होंगे। मोस्ट ऑफ द पाई ही होगा, लेकिन इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे। और यहाँ पे आर्बिट्ररी पीरियड में एल इज इक्वल टू 1 2 4 हो रहा होगा। बाकी सारे स्टेप एज इट इज। ओके, अंडरस्टैंड? यस यस सर। ओके, देन नंबर 3 कौन सा किया था? ऑड इवन है। यस, थर्ड था इवन ऑड कॉन्सेप्ट। ओके, सो इवन ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज, तो उसके लिए क्या करते थे पहले? उसके लिए स्टेप नंबर 1 हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है, वो चेक करना। लेकिन इवन ऑड के लिए एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, यू हैव द इंटरवल माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन एल। एक लिमिट नेगेटिव होना चाहिए और एक लिमिट पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 ये हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अगर आपका इवन फंक्शन है तो स्टेप्स अलग हो जाएंगे, अगर आपके ऑड फंक्शन है तो उसके स्टेप्स अलग हो जाएंगे। इवन है तो आपका बी एन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो आपका स्टेप नंबर 3 हो जाएगा फाइंड ए 0। ओके, एंड स्टेप नंबर 4 हो जाएगा फाइंड ए एन। अब अगर ऑड फंक्शन निकला तो आपका स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, है ना? सॉरी, इसके साथ जैसे ही ऑड होता है तो a0 एंड an दोनों 0 हो जाएंगे, दैट इज योर स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 हो जाएगा फाइंड bn। ओके, और जैसे ही bn मिलता है फिर हमारा लास्ट स्टेप तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग वाला पार्ट। ओके, सब्सटीट्यूट, दैट इज योर 5th स्टेप, और यहाँ पे 4th स्टेप सब्सटीट्यूट। इज इट ओके एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। Okay, so this is the change. Okay, then next method, कोई बताएगा नेक्स्ट मेथड क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस पीरियड के लिए। Yes, discontinuous. Okay, so discontinuous function. So discontinuous function के लिए सारे स्टेप मीन्स 1 to 5 स्टेप्स, 1 to 5 सभी आएंगे उसमें। लेकिन चेंज क्या होगा? a0 में जो हम सिंगल इंटीग्रेशन करते थे उसकी जगह पे जितनी बार आपको पार्टीशन करके दिया है उतनी बार उसको करना पड़ेगा। सिमिलरली an में भी ऐसे ही होगा, सिंगल था अब तक, अब आपको जितनी बार पार्टीशन करके दिया है उतनी बार आपको करना पड़ेगा। एंड bn में भी सिमिलरली। ओके, दैट इज द चेंज इन द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज। ओके एवरीबॉडी? यस सर Student, okay, and last step, what is my last method? Last method Four is times. half range. Yes or no? यस सर ओके, हाफ रेंज के लिए ऑटोमेटिकली हमारी जो रेंज है वो हो जाएगी c लेस देन x लेस देन c प्लस l। लेकिन इसमें मेजोरिटी एग्जांपल यही होंगे 0 लेस देन x लेस देन l के वाले, है ना? तो आपका l सीधा मिल जाएगा। फिर हाफ रेंज में क्या करना है, तो उसके लिए दो डिफरेंट हाफ रेंज पूछा जाता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा स्टेट फूरियर सीरीज कोसाइन सीरीज के लिए। ओके, देन नंबर 2 हो जाएगा कोसाइन मीन्स आप इवन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा फाइंड a0 एंड स्टेप नंबर 3 हो जाएगा फाइंड an एंड स्टेप नंबर 4 सब्स्टिट्यूट। ओके,
अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. साइन के लिए हो जाएगा स्टेट फूरियर सीरीज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका यहाँ पे बी एन फाइंड करना है सीधा, सो फाइंड बी एन, एंड स्टेप नंबर 3 हो जाएगा अब बी एन मिलने के बाद सीधा सब्स्टिट्यूटिंग पार्ट. अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. So you have different 5 methods. This is your number 1, this is your number 2, this is your number 3, this is your number 4, and this one is number 5. So this is about our Fourier series unit. So please see every method, and if you have any doubt, any question, then you can discuss with me. Okay? Student, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज हमने एक एग्जाम्पल किया, लेकिन मैंने देखो आप फुल स्टेप ही किए हैं, थोड़ा बहुत ही 1-2 स्टेप ही नहीं किए होंगे, बाकी पूरा एग्जाम्पल सॉल्व किया है. तो इसी तरीके से आपको फूरियर सीरीज के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ओके, सो फूरियर सीरीज का रिवीजन के लिए अब एक इवन ऑड वाला ले लेंगे, है ना, और एक ये हाफ रेंज वाला लेंगे. बाकी ये तीनों तो सेम ही है. डन? इज इट ओके? ये तीनों का सेम ही स्टेप्स होते हैं, सिर्फ ये दोनों में थोड़ा चेंज है, तो वो एक बार हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में. देन वी गो फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, so is there any doubt, any question in today's session? No doubt, sir. No doubt, sir. ओके, और दक्ष आप जो बोल रहे थे ना, तो आप मुझे भेज देना बेटा, है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में अगर होगा लाप्लास का जब रिवीजन करेंगे ना तब उसको सॉल्व कर देंगे, चलेगा ना? यस सर, यस सर. है ना? ओके, नाउ D2D वालों को अभी कैसा लग रहा है? आई थिंक यू रिवाइज ऑल दी थिंग्स, है ना, कर रहे हो ना सब लोग, Yes, sir. है ना? Yes, sir.